Hello, friends, and in the series of taking up main answer writing questions and trying to see that what aspects we should be picking up and how we should be improving upon our understanding, इसी दिशा में ये एक और कदम है। हमने एक सीरीज इस तरह से तैयार की है, हर क्वेश्चन एक अलग डायमेंशन दिखाता है। हमने कोशिश की है कि आंसर्स के एस्पेक्ट्स को लेके चलें। हमने कोशिश की है कि वो ऑनेस्ट और जेन्युइन तरीके से और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग से जोड़े और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी हेल्प करे। So with this belief and complete dedication to that fact, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। cities are economic powerhouse but they also act as ecological black hole. In the light of this statement, discuss how the positive and negative aspect of urbanization interact with each other. तो बहुत बढ़िया aspect है interaction. You have to bring the transient zone of urbanization, ruralization, satellite town जो भी आपका है पूरा का पूरा आप लेके आ रहे हैं और उसके उसके अंदर आप environmental aspect जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक हमारे सामने एक टैबुलेशन है। देयर इज अ टैबुलेशन इकोनॉमिक पावर हाउस एंड इकोलॉजिकल ब्लैक होल का कैसे है। सो अच्छा है, टैबुलेशन इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी स्टैंडर्ड, वेरी गुड फैक्ट इज गिवन। और बोथ साइड्स वेदर इट इज इंडस्ट्रीज वर्सेस रैपिड अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज, चलिए कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, चलिए चलिए उसके बाद अर्बन फ्लडिंग, ये सारी चीज बहुत अच्छी है। देयरफॉर टेकिंग एग्जांपल ऑफ बेंगलुरु, an IT industry hub with high influx of migrants, both high and low skills, a sea of innovation and excellence in business and trade, yet there has been cases of pollution, flooding, animal traffic congestion. अब आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड लेके आने चाहिए थे। इन केस ऑफ बेंगलुरु, there is concretization and at the top of it the blockage of natural riverine जो वैली है, बेंगलुरु वैली जो जोन जिसको एक फ्री फ्लो वाटर चाहिए था, वो छोटे छोटे जो चैनल्स थे वो सभी के सभी ब्लॉक हो गए। एंड दैट इज वाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज। कश्मीर के साथ भी, यानी झेलम रिवर की वजह से श्रीनगर में भी ऐसा हम देख चुके हैं। चेन्नई भी इसका एक अदर एग्जाम्पल है। तो जब ब्लैक होल वर्ड यूज किया तो हमें बड़े बड़े वर्ड जैसे एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें इकोलॉजिकल ब्लैक होल में, आप सबसे पहले और जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहाँ लेके आ सकते हैं। सो यू हैव टू ब्रिंग बिग फ्रेजेस एंड बिग आइडियाज और उसके बाद लिंक करके उसको स्मॉलर एस्पेक्ट से लेके आना है। Sustainable urbanization is needed like small pockets of Ahmedabad, Chandigarh, where focus on urban forestry with zones of surface drainage of water, ठीक है। Sponge in Ahmedabad, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, साबरमती रिवर का एग्जांपल है। इन केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ग्रिड लाइक रोड फॉर ट्रैफिक कंजेशन, चेन्नई सॉरी चंडीगढ़, यूज ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सीपेज मैकेनिज्म एंड रिसर्जेंस, आपने यहाँ पे पॉजिटिव एग्जांपल दिया। Thus, SDG 1 is talking about inclusions and clean cities need focus on financial autonomy of local body, for example, Bhopal, water plus urban forestry, ODF plus, Amrut, Swachh, Swachh Sarvekshan, very good. It's an example from Indore. Thus, with this positive worry, we can take place between ecology and urbanization. I think बहुत ही honest effort है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं और एक आंसर में कनेक्टिविटी भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और लेवल आएगा, लेकिन आई थिंक इट इज अ गुड एफर्ट। Examine the change in land use pattern in India since independence. Very good. Examine the land use pattern in India since independence and its resultant impact on climate change. 15 number है, तो that means you have to carry on in a very smart and in a very long way. So land use pattern change has been multidimensional, resulting in impacting on food security and water security in future. From green revolution, more focus on rice wheat cycle than traditional less water intense millet. For example, Punjab's groundwater crisis. Increase plantation crops, for example, in tea, Assam, tea, coffee, Karnataka, Kerala. बहुत अच्छा है, I think wonderfully written. In case of sugarcane plant, तो 80% of crops। तो लेकिन इस आप चलिए आगे चलिए, दो focus on pulses in horticulture as compared to wheat and rice. Import of import bill of pulses 2.6 million metric ton. Whereas rapid urbanization have led to formation of big cities like Bengaluru, Pune, Chandigarh as a large food cities. The urban area denotes 36% over the years from 15%. Thus, land use pattern have caused stress on environment. Its impact on climate change are air, soil, water. Evolution is here, and industrialization, excessive use of chemical fertilizers, aerosol, ocean acidification, intensification, land degradation, ठीक बात है, mitigation में land climate change, land degradation and neutrality, climate change, crops, reclamation of land via farm। अच्छे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब लैंड यूज पैटर्न की बात लेके आते तो आप थोड़ा बताते इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप कैसे हो रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे कॉन्सेप्ट भी आए,
कोस्टल और हिंटरलैंड में क्या फर्क है, और साथ साथ में कैसे इरिगेटेड लैंड बढ़ा है, रेनफेड एग्रीकल्चर का लैंड थोड़ा कम हुआ है, और आप साथ साथ में लैंड यूज पैटर्न के चेंज में आप यहाँ पर आपको लेके आना चाहिए था जो लैंड वेस्टिंग अवे ऑफ लैंड जो हो रहा है, यानी डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, वो और थोड़ा सा आता तो। कुल मिला के एस्पेक्ट बहुत सारे हैं जो आपने उठाए, वो क्लैरिटी से उठाए हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल हुआ हल्का सा, और थोड़ा ब्रॉड हो सकता था, पर एनीवेज इट्स अ गुड एफर्ट। India is currently on the path of rapid urbanization, leading to the creation of various metropolitan, I think, good beginning, economic powerhouse, ecological black hole, creation of residential market office complexities leading to economic avenues, more employment, but with positive they are paying it. I think this approach is far better catering than the first question. First वाले में बहुत अच्छे एलिमेंट्स थे, लेकिन ये आंसर ज्यादा ऑर्गेनिक और ज्यादा कनेक्टेड है। चलिए आगे। Removal of green cover, deforestation, increased population pressure, higher density, for example, Delhi, more than 3 crore population. चलो, depletion of air, water, environment. AQI सफर इंडेक्स 350 प्लस, दिल्ली बॉम्बे। आपको यहाँ पे नोएडा, नोएडा प्लस, नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे ऐसे लेके आना चाहिए। आपको बात करनी चाहिए कि कैसे कंक्रीट जंगल रेडी हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हाई राइज बिल्डिंग, डीएलएफ टावर्स, सीजीएचएस बिल्डिंग, द्वारका, रोहिणी, बांद्रा। तो आपने अच्छा है, पिछले आंसर से इंस्पायर होकर आपने कोशिश तो की, लेकिन थोड़ा ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा कम होना चाहिए था, हल्का सा। तो प्रेशर ओवर सीवेज फैसिलिटीज तो है ही, लेकिन आपको कहना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट एसटीपी स्मॉल और बिग तैयार होने चाहिए, जो नहीं है। डंपिंग की जगह आप वर्ड यूज कीजिए वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर लैंडफिल, या फिर उसके बाद आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेके आइए, तो ठीक है, वोकेबुलरी थोड़ी और इंप्रूव हो सकती है। चलिए चलिए। ओवरफ्लो ऑन द रोड लीड्स टू अर्बन फ्लडिंग, यमुना, मूसी रिवर। और उसके बाद नेवरदलेस अर्बनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज नेसेसरी टू इंक्रीज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। क्रिएट स्मार्ट विलेजेस लाइक स्मार्ट सिटीज, फोकस ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, शिफ्ट। अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश है। आंसर फाइट कर रहा है, और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, गृह कोड, ये बहुत कुछ दिया आपने, लेकिन वही बात है, फोकस ऑन पब्लिक। आंसर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, आंसर थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है, आंसर थोड़ा रिपोर्ट रिपोर्ट लाइक लगने लगता है। इसीलिए एक तरह की चीज को लाने की कोशिश मत कीजिए, हर एलिमेंट अलग अलग पर्सपेक्टिव से लाके रखिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा कंटेंट है, कंटेंट बल्कि ज्यादा है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा बल्कि कम होने से ही ज्यादा हमारा फायदा होगा। आगे चलिए। जो लैंड यूज पैटर्न है उसका जो चेंज है वो भी बताना नहीं है, उसको भी एग्जामिन करना है कि लैंड यूज पैटर्न ठीक हुआ, लैंड यूज पैटर्न से क्या इंपैक्ट हुआ, लैंड यूज पैटर्न गलत हुआ। तो फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी, चलिए। ड्यूरिंग सेकंड 5 पीसी मानोबिस, चलिए आगे चलिए। इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, चलिए चलिए। ड्यूरिंग लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवोल्यूशन, इंकर्शन ऑफ HYC, ठीक है। उसके बाद आपने एमसीसी पे आ गए, आप इन्वेजिव स्पीसीज की बात होने लगी, केमिकल्स और फूड चेन की बात होगी। लेकिन लैंड यूज पैटर्न, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर लैंड का इंडस्ट्रियल यूज में होना, लैंड का डेजर्टिफिकेशन होना, अर्बनाइजेशन का अनप्लान तरीके से बढ़ना, ये सभी लैंड यूज पैटर्न है। इसमें अर्बन डेवलपमेंट को हम शोकेस कर सकते हैं, रूरल को भी हम बता सकते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ी तो गांव भी बढ़ते चले गए। सो आई थिंक गुड एफर्ट, बट अगेन एक स्ट्रक्चर इमर्ज होकर आ रहा है। नीड ऑफ द आर कैलकुलेटिव डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि आप कहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल होना चाहिए। चलिए और आगे चलिए। शिफ्ट टुवर्ड्स जैविक खेती, बिल्कुल ठीक बात है, पॉइंट बहुत अच्छे हैं लेकिन ज्यादा है। फिर वही बात है, थोड़े पॉइंट कम हो लेकिन सभी पॉइंट में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए आगे चलिए। ये पेज थोड़ा सा मुड़ गया है, लेकिन फिर भी इंडिया इज ऑन द cusp of huge change through creation of startups in different sectors of economy with infrastructure creation as further. For example, Maharashtra, Pune, lauded as an economic powerhouse as said by Japan with the rise in investment, employment and income. Overall, you can decide on one side of cities are economic powerhouse, on the concern is for तो अच्छे नैरेटिव है, लिखने का तरीका अच्छा है, सेंसिटिव है। चलिए आगे। राइज इन पोल्यूशन लेवल, स्लम एरियाज, इम्पैक्टिंग हेल्थ एनवायरनमेंट, और उसके बाद जो है इकोलॉजिकल ब्लैक होल। इसलिए हम बात समझाया, अच्छा है, ये एक अच्छा स्टाइल है। थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ते चले जाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं, इंडस्ट्रीज की बात है, सोशल इंस्टीट्यूशन की बात है, अर्बनाइजेशन की बात है। चलो सोशल इंटीग्रेशन, चलिए आगे चलिए। अर्बनाइजेशन समटाइम एक्ट एज ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपने बता दिया, फ्लोरा एंड फौना की बात कर दी, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, डेली बेसिस, रूरल अर्बन ड्रिफ्ट की आपने बात की, माइग्रेशन की बात की, अर्बनाइजेशन समटाइम। तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा इमर्ज होके आया। पहले वाले आंसर्स भी कंपेरेबली बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा कंटेंट है, लेकिन इस आंसर के अंदर एक स्ट्रक्चर इमर्ज होने की शुरू में बात हो रही थी, बहुत सिंपल था, जैसे आप कोई नोवेल या मैगजीन पढ़ते हैं उस टाइप का अप्रोच था।
बट देन अगेन इट नीड टू बी रेज द बार लिटिल बिट मोर, कैची होना चाहिए थोड़ा, और वो होगा समय के साथ। चलिए आगे चलिए। सो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, एज पर यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 34% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज एंड इज इंक्रीज बियॉन्ड 50%। देखो कैसे पहला एलिमेंट ही कितना ज्यादा क्लियरली, इकोनॉमिक पावर ऑफ देखो 65% ऑफ जीडीपी, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज हमने भी बताया, एनर्जी कंस्ट्रक्शन सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन सेंटर ऑफ इनोवेशन, ये 3 पॉइंट है, लेकिन पहला पॉइंट मिसिंग है। चलिए आगे। इकोलॉजिकल ब्लैक होल, हमने आपने जो पहला आंसर जो बताया था वो बहुत अच्छा था, और जिसमें आपने टैबुलेशन किया। एमिशन हो गया, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंक्रीट सीमेंट डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ पैटर्न का एलिमेंट हम नहीं लेके आए। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। तो कांस्टेंट इंटरैक्शन वाला जो एलिमेंट था, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, कि हमारे जो आंसर्स थे उसके अंदर इंटरैक्शन पे जो फोकस करके हमें दिखाना है। जैसे बेंगलुरु आपने एम्प्लॉयमेंट बोला, इकोनॉमी बोला, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट हमने भी बताया। लेकिन जिस तरीके से एक ये चार्ट बना, और जिस तरीके से ग्रीन स्पेसेस में व्हीकुलर इमिशन में SO2 NO2 ये भी बता दिया, ये हमारे में माइक्रो तो निकल रहा है, हमारे में मैक्रो पिक्चर नहीं निकल गया, तो वो आनी जरूरी है। चलिए, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर इकोनॉमी इज अ बूस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर थर्मल पावर प्लांट्स मेक इन इंडिया बूस्टिंग एक्सपोर्ट सप्लाई। चलिए आगे चलिए। डंप इनटू रिवर ड्रेन, चलिए आगे चलिए साइमल्टेनियसली, आगे चलिए। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपने बताया, देखो कानपुर की लेदर इंडस्ट्री, मैरीन और ग्रीन इकोसिस्टम, तो यानी धारावी का आपने बताया, लेकिन साथ में आपने नैरो स्पेस, या फिर आप कहिए डिसअपियरेंस ऑफ स्पैरो फ्रॉम एडवेंचर, तो यानी सेंसिटिव है आंसर। आंसर के अंदर अवेयरनेस है, दिल्ली में स्मोक सिटी तो हमने भी बताया, लेकिन हमने एक एक चीज को ज्यादा बता दिया। तो आंसर बोर नहीं हो रहा है, आंसर मंडेन नहीं हो रहा है, आंसर नैरेटिव नहीं हो रहा है, आंसर हमें अट्रैक्ट कर रहा है। तो यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, आपने पंचामृत की बात की, ग्लासगो गोल्स की बात की, यूज ऑफ ब्लू ग्रीन वाटर कंजर्वेशन की बात की, आई थिंक फेयर इनफ। चलिए आगे। मिहिर शाह कमेटी भी लेके आए, जो कि रिपीट हो रही है। इंडिया कंप्राइजेस 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, कितना अच्छा फैक्ट है, 17% पॉपुलेशन है। जबकि चेंज इन लैंड यूज impacting climate change, तो एग्रीकल्चर लैंड डिक्रीज विद ग्रेटर फ्रेगमेंटेशन, एग्रीकल्चर क्राइसिस, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन फर्टिलाइजर हमने भी बताया, लेकिन ऐसे नहीं बताया हमने ना, हमने एवरेज साइज ऑफ फैक्ट्री दिया। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज मैंने आपको बोला था लाना चाहिए एलिमेंट। लेदर इंडस्ट्रीज एमिशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम, चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पॉल्यूटेंट्स, ग्रेटर अर्बनाइजेशन हमने भी बोला, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं बोला, हमारे यहाँ फैक्ट थोड़े ज्यादा फिके गए, थोड़ा सा हम और क्लैरिटी से करें। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखिए यहाँ पे दिया है, राइज ऑफ हीट वेव्स भी दिया है, रैम्पेंट डिफोरेस्टेशन, रिडक्शन इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन, वेस्टलैंड, राइज इन ग्रीन हाउस एमिशन। चलिए बहुत अच्छा एलिमेंट, चलिए हमारे भी आंसर में ये सारे एलिमेंट्स हैं। रिक्लेमिंग ऑफ वेटलैंड्स नहीं है, मार्शेस भी हमारे में नहीं था, क्योंकि कूलिंग एजेंट्स है, डिजास्टर बैरियर कैसे वर्क करेंगे, मैंग्रोव, जैसे बॉम्बे की बात है, बॉम्बे में कोस्टल रीजन में बहुत मैंग्रोव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओवरऑल सडन चेंज इन इंडिया मानसून पैटर्न हमने नहीं मेंशन किया, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट पैटर्न हैज इंक्रीज, ये पॉइंट हमारा नहीं था, और आईपीसीसी की चर्चा हमने नहीं की। तो कुल मिला के मतलब हमने बहुत सारी चीजों की बात की, हमारी चीजों में कुछ चीजें रिपीटेटिव हो गई, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स। वी कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। हमने उन चीजों की बात नहीं की, इट कुड हैव बीन बेटर अगर हम उसको भी ले लेते, पर आई थिंक विद टाइम डेफिनेटली वी आर ऑन द मूव विद दैट। यस सर। यस और स्पेसिफिक टर्म्स यूज करने हैं थोड़ा प्रेजेंटेशन में, नरेशन टर्म आ रहा है। आप देखिए पर्सनैलिटी के इम्पैक्ट से होता है ये, पर्सनैलिटी अगर हमारी इंप्रूव होगी, हमारी पर्सनैलिटी से हमारा आंसर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारी मेमोरी वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वर्क करती है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जोन, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एरिया, तो याद करके तो नहीं हो सकता, ये बहुत ही फिनोमिनल होता है, जो मन में आया लिख दो, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर इमर्ज होकर आता है, तो होगा। आप उसका रास्ता निकालिए, और फर्क आ रहा है, बस मैं इतना कह सकता हूँ, आंसर्स आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। थैंक यू। ओके औशिक। सर लास्ट वाला जो आंसर था आई थिंक सर जो आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ लैंड यूज एग्रीकल्चर में तो है, लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री हो गया, बाकी सबका वो एलिमेंट आता, तो लास्ट वाला अच्छा हो जाता मेरा आंसर, क्योंकि उसमें बताया कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, लास्ट वाला आंसर। लेकिन पूछा था कि लैंड यूज कैसे पैटर्न चेंज होता है। हाँ इंटरैक्शन सर, वर्ड आप वर्ड पैटर्न करो ना, राइट। इंटरैक्शन वर्ड पकड़ते ही कान खड़ा हो जाना चाहिए कि क्या बोल रहा है ये। लैंड यूज थोड़ी पैटर्न हिम्मत पूछा। दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, हिम्मत दिखाओ, डरो मत। हिम्मत दिखा के अपना पैटर्न निकलेगा, दैट इज व्हाट इज पर्सनैलिटी। कोई याद नहीं रख सकता। मेमोरी उसको कहते हैं जो 15 साल पहले भी आपको विविडली याद है कि किसी टीचर ने आपको क्या कहा था, वो तभी याद रह सकता है जब आप फोकस्ड और रिलैक्स्ड हो। मेमोरी का मतलब ये नहीं हो रहा कि आप याद कितना कर सकते हो, मेमोरी का मतलब, मेमोरी और रिकॉल में फर्क है, यस एग्जाम में टाइम ही नहीं है।
रिकॉल का भी टाइम नहीं है, एक्टिव रिकॉल चाहिए एग्जाम में। कि अगर अगर एग्जाम में अर्बन हीट आइलैंड वर्ड आता है तो आपके दिमाग के अंदर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बॉम्बे, दिल्ली कुछ भी आ जाना चाहिए कि हीट आइलैंड कैसे है, कि क्रिकेट का मैच भी हो रहा है तो फॉरेन के प्लेयर्स क्रैम्प्स के कारण गिर रहे हैं, तो वो भी हीट का ही इम्पैक्ट है। सड़कों का कोलतार जो है वो पिघलने लग गया, वो भी है, वो भी अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और जो है आपको सीजनल डिजीज हो रही है, दैट इज ऑल इम्पैक्ट ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। जो स्पीसीज लोकल नहीं है, वो पेड़ की, वो जो वाइल्ड लाइफ या फिर वो जो फौना स्पीसीज है वो मर रही है। या फिर जू में अगर कोई भी ऐसा एनिमल है जो वहां का नहीं है, अर्बन हीट यानी हीट के कारण वो भी मरने की कगार पे, आप टॉपर हो। हाँ चल। हाँ चल, यस सर। बोलो जल्दी। सर मेरे को तो बिल्कुल फील करके लिखना चाहिए, मतलब फोर्सफुली या फिर मतलब माइंड में जो भी आ रहा है वो इस तरीके से इंटरप्रेट करो और फिर उसको शो करना है पूरे आंसर्स में, मतलब इस तरीके से बिखेरना है पूरे करो सारी कोशिश। जगह जो भी आइडियाज है, लेकिन वो लेवल आने से होगा। वेरी गुड, कीप इट अप। So let's move in the same direction. Prerna, my video is off, and Karuna, you too. So Prerna, you want to say something? No, sir. Karuna, you want to say something? Okay, we'll continue on the same lines. Thank you very much. Wishing all of you all the best, and we'll get back soon.